Hello everyone, welcome to UPSC Sati. So in this video, we will be talking about an incident related to Buddha, and you can extract some of the points from this video or this article which you can use in your essay paper, right? So this is the Telegram link, Sociology with Manoj and UPSC Sati by Manoj. Those who want to join, please do join this channel. So let us start. The story goes that Buddha was on the verge of nirvana, the final journey. So बुद्धा को निर्वाणा प्राप्त होने वाला था. It was unbearable for his disciples to imagine life without their master. So जो उनके disciples थे, जो उनके शिष्य थे, वो imagine नहीं कर पा रहे थे अपनी life without Buddha, with whom they had spent several decades. They were worried how they would be able to live without the Buddha. बुद्धा के बिना कैसे जिएंगे? As they all were crying at the very idea of Buddha leaving them. Anand, the chief disciple, was called by master and asked what was the reason for their sorrow. बुद्धा ने आनंद को बुलाया और बोला यार ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? To this, Anand broke down and said that since the master was not going to be around to lead and guide them, disciples were expecting darkness to descend on them. बोलते हैं आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो कौन हमको गाइड कौन करेगा, हमको रास्ता कौन दिखाएगा और हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, ऐसा आनंद बोलते हैं बुद्धा को. इट वॉज द कॉज ऑफ ग्रेट एंग्विश एंड डिस्पेयर. हु विल नाउ शो देम द लाइट ऑफ लाइफ? What would happen to them without the Buddha? The Buddha heard him and smiled, and then in a deep voice he said, Atam Atma Deepo Bhav, be your own light. So बुद्धा ने सुना उनको और स्माइल दिया और डीप वॉइस में बोला, आत्म दीपो भव, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन लाइट. तो जो ये हम सुनते हैं बार बार, बी योर ओन लाइट, सो ये कंटेक्स्ट था, ये स्टोरी थी उसके बिहाइंड में. ठीक है, तो इसको इस पैराग्राफ को, पूरे इस पैराग्राफ को ही आप अपने ऐसे में एज एनेक्डोट यूज कर सकते हो. ठीक है, दिस इज सपोज टू बी द लास्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा, और ये बुद्धा की लास्ट टीचिंग थी, एंड परहैप्स द मोस्ट प्रोफाउंड वन. दिस वाज द सेंट्रल थीम ऑफ बुद्धा's टीचिंग. फाइंड योर ओन पाथ एंड गाइड योरसेल्फ विद योर ओन लाइफ. सो अपना रास्ता खुद ढूंढो, खुद अपने गाइड बनो. बी योर ओन लाइफ. द बुद्धा एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट ऑन हिज ओन. बुद्धा ने एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस किया खुद से ही. Psychologists may call this self-awareness or introspection, but this is what self-realization is. No one can enlighten you from within. आपको कोई enlighten नहीं कर सकता. In fact, being one's own light is the essence of all teachings, rather the very purpose. But the question is how to attain this, given the darkness and gloom that people find all around. For most of us, this may be the biggest challenge. However, there is a need to understand that a master can only show the path. So जो master है या जो गुरु है, वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है. द जर्नी हैज टू बी टेकन बाय वन सेल्फ. जर्नी तो आपको ही पूरी करनी पड़ेगी. द वेरी फैक्ट that those who lived with the Buddha for 4 decades felt the same predicament and had to be told to pursue their journey on their own suggests how important it is to find one's own path. This is what Buddha emphasized. Self enlightenment through self realization. It is this which will help realize the destructible nature of Maya, the surreal world that surrounds us. So self-enlightenment through self-realization will help you that this माया जो है, माया का नेचर डिस्ट्रक्टेबल है, राइट. एंड ये जो वर्ल्ड है आपके चारों तरफ, ये रियल नहीं है. दिस माया कैमोफ्लेजेस द रियलिटी. और जो ये माया है वो रियलिटी को छुपा लेती है और डिस्ट्रैक्ट करती है हमको लाइट देखने से. हम प्रकाश की तरफ बढ़ नहीं पाते जो हमारे अंदर है. द माया कैमोफ्लेजेस द रियलिटी एंड incessantly distract us from seeing the light that is within. The Buddha had focused on the impermanence of this surreal world. बुद्धा को समझ में आ गया था कि सारी चीजें टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में, इस संसार में. दैट वी परसीव टू बी रियल, जो हमको लगता है कि ये रियल में है. द एनालॉजी ऑफ हेराक्लिटस, दैट यू कैन नॉट बाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस. अब ये इस थीम के ऊपर यूपीएससी ने ऐसे ऑलरेडी पूछ लिया है. यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस. सो यहाँ हेराक्लिटस जो एक ग्रीक पर्सन था, उसके बारे में है कि दैट यू कैन नॉट बाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस. उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी है. सो दैट एक्सप्लेन्स द इम्परमानेंट नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. सो ये स्टोरी और ये एनालॉजी एक्सप्लेन करती है दैट जो भी संसार है में जो चीजें हैं, सारी चीजें क्या है, इम्परमानेंट है, टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है. इट इज एवर चेंजिंग फॉर एवरी इनफाइनेटली स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम. और ये हर समय, हर क्षण बदल रही है. नथिंग रिमेन्स द सेम, कुछ सेम नहीं रहता. आवर इग्नोरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्स परसेप्शन. So our ignorance is responsible for this false perception. Adi Shankar called this ignorance avidya. तो आदि शंकराचार्य इस ignorance को क्या बोलते हैं, अविद्या. And to remove this we need that light.
और इस अविद्या को, इस इग्नोरेंस को रिमूव करने के लिए हमको लाइट चाहिए। और वो लाइट कहाँ पर है? वो लाइट हमारे भीतर ही है, वो लाइट हमारे अंदर है। द लाइट फ्रॉम विद इन, दिस इज व्हाट बुद्धा मीन व्हेन ही सेड हिज डिसाइपल बी योर ओन लाइट, आत्म दीपो भवो। दिस लाइट इज इन एवरी पर्सन। ये लाइट और ये प्रकाश हर इंसान के अंदर है, बट वेरी फ्यू आर एबल टू किंडल इट। बट इसको जलाने में, इसको जागृत करने में कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। मिस्टिक पोइट कबीर एक्सप्लेन दिस इन वन ऑफ हिज कपलेट। और कबीर जी इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लाइक द ऑयल इन सीसेम सीड एंड फायर इन द फ्लिंट स्टोन, योर एनलाइटनमेंट इज इनसाइड यू। जैसे जो सीसेम सीड होता है, तिल का जो तिल होता है, तिल तिल के अंदर, तिल के जो ये सीड है, बीज है, तिल का बीज है, उसके अंदर ऑयल होता है। ठीक है, इस फ्लिंट स्टोन के अंदर फायर होती है। वैसी एनलाइटनमेंट आपके अंदर ही है, आपको उसको जगाना पड़ेगा। राइट? तो सेल्फ एनलाइटनमेंट थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ रियलाइजेशन से ही सेल्फ एनलाइटनमेंट होगा। तो बी योर ओन लाइट। सो इस आर्टिकल से, इस वीडियो से आप कई सारे पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपने फिलोसफिकल ऐसे जो यूपीएससी पूछ रहा है, यू कैन यूज दैट। राइट? सो ये कितना अच्छा एनेक्डोट है, आप यूज कर सकते हो। राइट? बाकी लास्ट में एक बार और, ये चैनल सोशियोलॉजी विद मनोज एंड यूपीएससी साथी बाई मनोज, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम। थैंक यू वेरी